मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे वी वर डूइंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड उसके अंदर ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਲੈਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਵਾਸ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute per liter of solution. So formula was molarity is equal to NB by V and complete formula end ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ WB upon MB into 1000 upon V। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਮੋਲੈਰਿਟੀ, या आप अगर दो अलग अलग सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट मोलैरिटीज मिक्स कर दिए तो व्हाट विल बी द मोलैरिटी। ठीक है, सो बच्चे फर्स्ट केस अपन ने जो डिस्कस करना है दैट इज इफ अ सॉल्यूशन इज diluted with water। फाइन, अगर ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਲੈਟ V1 is the initial volume, fine, M1 is the initial molarity। सो एक ही है बच्चे अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन। अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन दी बिफोर एडिंग वाटर मोलैरिटी M1 है एंड वॉल्यूम V1 है। लेट X ml of water is added। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ml of water ऐड करता। ठीक है, molarity of resulting solution M2। सो ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ molarity ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। we use the formula M1V1 is equal to M2V2। so M1 की है molarity of original solution before adding water, V1 is the volume of original solution before adding water, M2 जो अपन ने कैलकुलेट करना है molarity of resultant solution and V2 is volume of the solution after adding water। यानी कि this implies मैं लिख सकता है M1V1 is equal to M2 into V1 plus X। ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिनली वॉल्यूम वाज V1, अपन ने X ml ऑफ वाटर ऐड करता। क्लियर बच्चे, सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज। ठीक है, जो अपन ने यूज करने हैं इन सच केसेस। क्लियर, डन। सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज व्हिच वी नीड टू यूज इन सच केसेस बच्चे। ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाना है। सो देखो, let a question arise so बच्चे suppose अपना क्वेश्चन है a 500 ml solution is 2 molar। ठीक है, एक 500 ml सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी इज 2। ठीक है, $300 ml of water is added to it। आप उसके ਵਿੱਚ 300 ml वाटर पाता। ठीक है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोलैरिटी। सो अपन ने हुन उसकी मोलैरिटी आफ्टर एडिंग वाटर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो अब अपना फॉर्मूला यूज किया बच्चे
m1v1 is equal to m2v2 and मैं v2 की जगह पे पुट करता v1 plus x. Fine. Original polarity was 2 into original volume was 500 is equal to m2 बच्चे अपन ने कैलकुलेट करना है. Original volume was 500, so v2 कितना हो गया मेरा 800, 300 ऐड करके. Fine. So my m2 becomes 1000 upon 800. So this is 10 by 8 यानी कि 5 by 4. So 1.25 molar is your solution now. ठीक है बच्चे. So जेड़ा साडे कोल नवा solution बन गया उसकी molarity is 1.25 now. I hope this is easy. Clear है बच्चे. ठीक है. Now move on to case 2. ठीक है कि अगर अपन दो अलग अलग solutions of different molarities mix कर दिए then what we use. So लिखो बच्चे. Now case 2. If two different solutions of different molarities are mixed. So अगर मैं दो अलग अलग solutions दो अलग अलग molarities दे mix कर रहे हैं. ठीक है. So let m1 is the molarity of solution 1. V1 is the molarity of is the volume of solution 1. M2 is the molarity of solution 2 and V2 is the volume of solution 2. Fine. So मैं दो अलग अलग solutions ले. ठीक है. जिस विचों solution 1 दी molarity is m1 volume is v1 molarity is m2 volume is v2 मैं दोनों ਨੂੰ mix करता बच्चे. ठीक है. सो मेरा ਹੁਣ मैं molarity of resultant solution कितना कैलकुलेट करूंगा. ਇੱਥੇ मेरा फॉर्मूला लगूगा m1 v1 plus m2 v2 is equal to mr vr. Molarity of the resultant solution, volume of the resultant solution. So volume of resultant solution की है V1 plus V2. ठीक है ना. So अपन लिखेंगे where VR is equal to V1 plus V2. ठीक है. So इस दिन आप रिलेटेड में सब क्वेश्चन सॉल्व करवाना है. ठीक है. So देखो अगर क्वेश्चन अपन आता है कुछ है ना 500 ml of 1.5 molar HCl and 1.5 liter of 2 molar HCl are mixed. Fine. So अपने को एक हाफ लीटर सॉल्यूशन है HCl का जिसकी molarity is 1.5 and एक 2 लीटर सॉल्यूशन 1.5 लीटर सॉल्यूशन है HCl का जिसकी molarity is 2. ठीक है. Calculate the molarity of resulting solution. So अपन ने फाइंड आउट करनी है बच्चे molarity of resulting solution. ठीक है. Now आपका फॉर्मूला यूज किया अपना m1v1 प्लस m2v2. अगर बच्चे दो तो ज्यादा सॉल्यूशंस भी होंगे 3 होंगे 4 होंगे तो अपना फॉर्मूला की बन जाएगा प्लस m3v3 प्लस m4v4 एंड सो ऑन. ठीक है. इज इक्वल टू mr vr. ठीक है. डन. सो हाँ जी फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है बच्चे 1.5 वॉल्यूम कितनी है 500 ml प्लस
दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है 2, वॉल्यूम कितनी है बच्चे 1500। बच्चे ध्यान च रखना है ਇੱਥੇ ml ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੀਟਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ml ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਾਈਨ। ਸੋ is equal to molarity resultant ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट करनी है ਤੇ वॉल्यूम कितनी होगी बच्चे दोनों ਨੂੰ ऐड कर दो 500 plus 1500 सो ये हो गया 2000। हाँ जी सो इसਨੂੰ मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 750 प्लस इसਨੂੰ 3000 अपॉन 2000 रजी is equal to resultant molarity। ठीक है सो आप उधर ही लिख देने हैं। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू ए हो गया 3750 सो 37550 अपॉन 2000। ठीक है सो दिस विल बी 3.75 अपॉन 2 सो कितनी मोलैरिटी आ जाएगी बच्चे 17 so 8s are 6 so 1.87 molar is your resultant solution बच्चे। ठीक है ना so these two formulas are also very important। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ अलग-अलग solutions दो अलग-अलग molarities ਦੇ mix ਕਰਦੇ हैं ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ solutions ਤਾਂ ਆਪਣਾ formula ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ m1v1 plus m2v2 plus m3v3 and so on is equal to mr vr। और अगर आप पानी दे नाल उसनु डाइल्यूट करते हैं देन वी यूज द फॉर्मूला m1v1 is equal to m2v2। ठीक है सो दिस कंप्लीट्स योर मोलैरिटी बच्चे। ठीक है ना आप दोबारा मोलैरिटी दे वापस आवांगे ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन्स बट फिलहाल पहला आप स्टार्ट करांगे अपनी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सो बच्चे नाउ वी शैल स्टार्ट ऑफ विद आवर नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। So the next concentration term is molality denoted by small m। So बच्चे पहला अपन ने कवर किया है molarity denoted by capital M। Now we are on molality denoted by small m। Fine। So firstly the definition, it is the number of moles of solute in 1 kg of solvent। so बच्चे डिफरेंस पिक करो molarity was number of moles of solute in 1 liter of solution total solution जबकि molality is number of moles of solute per kg of solvent only। सिर्फ कल्ला solvent दा 1 किलो होना चाहिए। you getting the point? देखो molarity is number of moles of solute per liter of total solution। molality is number of moles of solute in 1000 grams या 1 kg of solvent। so formula की बनेगा so molality is number of moles of solute upon mass of solvent in kilograms। ठीक है ना so NB की है number of moles of solute and WA is mass of solvent in kilograms बच्चे। ठीक है मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा the formula can also be written as NB into 1000 upon WA अगर अपने पास WA is given in grams। ठीक है ना सो मैं NB को भी एक्सपैंड कर देना है एंड मेरा कंप्लीट फॉर्मूला बन गया मोलैलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB into 1000 upon WA। so this is my complete formula बच्चे। just a second बच्चे so this is my complete formula molality is equal to WB upon MB into 1000 upon WA। clear? ठीक है राजे so once again I repeat ਹੁਣ ਦੇਖੋ molarity ਤੇ molality ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ सिर्फ और सिर्फ इस एक टर्म ਦਾ अगर मैं ਇੱਥੇ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखदा है ਤਾਂ this is molarity और अगर मैं ਇੱਥੇ mass of solvent in grams लिखदा है ਤਾਂ this is molality।
क्लियर डन। हुण दोनों विचों मैं तुहानूं थ्योरेटिकली डिफरेंस दस दा। देखो ये तो दिस वाज द डिफरेंस इन द मैथमेटिकल फॉर्म। हुण थ्योरेटिकली देखो बच्चे ध्यान नाल। सो देखो नाउ हुण तुहानूं क्वेश्चन आंदा है। सो बच्चे देखो क्वेश्चन आ रहा है which solution is more concentrated, 2 molar NaOH or 2 molar NaOH। सो मेरे को दो अलग अलग सॉल्यूशंस है। एक सॉल्यूशन दी मोलैरिटी इज 2 और एक सॉल्यूशन दी मोलैलिटी इज 2। वो कहते हैं कि दोनों विचों किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। एंड योर ऑप्शंस आर 2 मोलर, 2 मोलर, both are equal, can't say anything, ठीक है। सो दीज आर योर ऑप्शंस, ठीक है बच्चे। हुण देखो 2 मोलर NaOH का मतलब की है। सो देखो बच्चे हुण इत्थे डेफिनेशन काम आएगी। मोलैरिटी की हुंदी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि इहदा की सीन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने अपने कोल 2 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है 1 लीटर। सो यही रिजल्ट निकलता है ना। मोलैरिटी की होती है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो इफ द वॉल्यूम इज 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर 2, द मोलैरिटी इज 2, ठीक है। उत्थे की सीन है number of moles of solute are 2 and mass of solvent is 1 kg। क्लियर, चाहे 1 kg लिख लो चाहे आप ml ही लिख लेंगे हैं, 1000 ml and 1000 grams। क्लियर बच्चे, डन। नाउ हुण अपने को सोल्यूट दे मोल्स पता है अपन कितने हैं, ठीक है। सोल्यूट दे मोल्स पता है ना अपन कितने हैं, तो मैं मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकता है। सो WB, हाँ जी बच्चे। सो 2 मोल्स इनटू उसका मोलर मास, क्योंकि 1 मोल का मास कितना होता है मोलर मास के बराबर। NaOH का मोलर मास कितना है 40, 1 मोल का मास 40 है, 2 मोल्स का कितना होएगा 80 ग्राम्स। सिमिलरली इथे भी कितना बच्चे 80 ग्राम्स। क्लियर। हुण तुसी खुद देखो कि इथे तक की सीन है, दिस 80 grams प्लस x, ये मैं x की लिया सॉल्वेंट का मास या वॉल्यूम, दोनों टोटल मिला के कितने हैं मेरे पास 1000 ml। बच्चे गल समझ रहे हो ना। 2 moles are present in 1000 ml of solution, यानी कि 2 moles प्लस कुछ वाटर मिला के 1000 ml है, ठीक है। वो वाटर कितना होएगा, अगर आप रफ आइडिया लगा लिए 1000 जो 80 माइनस कर दो 920, वैसे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ग्राम्स है ml है, बट 1000 तो घट ही होएगा ना, ये तो श्योर है। हुण इधर देखो, इधर अपन को क्लियरली पता है कि 1000 ग्राम्स सॉरी 80 ग्राम्स NaOH है, 1000 ग्राम्स पानी है, ते टोटल कितना है 1080 ग्राम्स। सो बच्चे फर्क किथे पै रहा है कि इथे जिहड़ा x है वो बट नेचुरल है कि 1000 ml तो तक घट ही है, जबकि इथे पानी एलोन इज 1000। सो बच्चे वाटर किथे ज्यादा है इथे। जो वाटर ज्यादा है तो केड़ा सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होएगा, आह वाला, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन किदी हुंदी है सॉल्यूट दी। जिन्ना सॉल्यूट ज्यादा होएगा उन्नी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होएगी, जिन्ना सॉल्वेंट ज्यादा होएगा उन्नी कॉन्सेंट्रेशन घट होएगी। सो this one is less concentrated and this one is more concentrated। so 2 molar ਤੇ 2 molar solutions ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ molar solution is more concentrated। done ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। so this is what I wanted to explain कि molarity ਤੇ molality ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ difference ਹੁੰਦਾ ਹੈ। first difference is कि molarity is number of moles of solute per liter of total solution, molality is number of moles of solute per kg of only solvent। दूसरा, अगर दो अलग अलग सॉल्यूशंस है जिन्हां दी एक दी मोलैरिटी ते दूसरे दी मोलैलिटी सेम है,
the molarity वाला solution is more concentrated. Clear? Now, so अब कुछ questions करते हैं related to molality. So अब बिल्कुल simplest question तो बच्चे start करते हैं. So the question is 49 grams of H2SO4 is dissolved in 2 liters of water. Calculate its molality. उसकी molality calculate करो बच्चे, ठीक है? So now WB is equal to 49 grams, ठीक है? H2SO4. MB H2SO4 का मोलर मास बचे 98 grams, ठीक है? हाँ जी बच्चे. So WA volume of water 2000 ml. तब वाटर का मास भी कितना हो गया बच्चे 2000 ग्राम्स, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml. सो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml. तब वाटर की जितनी वॉल्यूम है उतना ही उसका मास है. सो अपने को सारा डाटा आ चुका. Now we use the formula molality is equal to WB by MB into 1000 upon WA. Clear? So now we'll put the values 49 upon 98 into 1000 upon 2000 बचे. Clear? So अपने पास क्या आ गया हम? So 1/2. So molality is 0.25 molar. Clear बच्चे, ठीक है? So this one is a simple question about molality, ठीक है? अपन next question पे move करते हैं, ठीक है? So उसको जरा ध्यान दल करियो. So देखो बच्चे, हुन अगर टीचर ने बच्चों को कंफ्यूज करना होवे, ठीक है ना? सो देखने को लगेगा कि इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इतना सिंपल नहीं होएगा. देखो की. सो द क्वेश्चन इज 2 moles of NaOH are dissolved in 1.2 liters 1.2 kg of solution. Full stop. Calculate the molality. So बच्चे देखो, the question seems to be very simple, ठीक है ना? हुन इस क्वेश्चन च कॉमन मिस्टेक है बच्चों की कि बच्चे फटाफट मोलालिटी कैलकुलेट कर देंगे ने कि सर मोलालिटी इज इक्वल टू NB अपॉन WA. सो NaOH ਦੇ मोल्स कितने हैं 2, मास ऑफ WA कितना है 1.2. आंसर आ गया, ठीक है? बट इतना सिंपल नहीं है क्वेश्चन जितना लग रहा है, ठीक है ना? सो बच्चे देखो, दिस इज WA यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट. दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना? सो इस सॉल्यूशन का मास है, ये आप उत्थे पुट नहीं कर सकते. सो दिस इज रॉन्ग सॉल्यूशन, रॉन्ग आंसर, ठीक है? हुन क्वेश्चन को सॉल्व कितना करना है आपने? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं बच्चे 2. द मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? सॉल्यूट इज NaOH. सो 2 into 40 is equal to 80 grams. So solute का मास आ गया बच्चे मेरे को. हुन मैं सॉल्वेंट का मास फाइंड आउट करूंगा. क्या मैं फाइंड आउट करूंगा?
सॉल्यूशन का टोटल मास इज 1.2 kg, सॉल्यूट का मास मेरे पास आ गया, सॉल्यूशन जो मैं सॉल्यूट माइनस करूंगा मेरे को सॉल्वेंट आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। सो देखो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सो WS माइनस WB, सो WS कितना है 1200 ग्राम्स माइनस 80 ग्राम्स, सो 1120 ग्राम्स। क्लियर बच्चे? ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1.12 kg। सो मैं kg ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਨਾਓ ਮੋਲੈਲਿਟੀ is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg बचे। ठीक है। So now answer will be number of moles of solute 2, ठीक है, and A कितना आ गया 1.12। So this इसको solve करके you will get your correct answer। ठीक है। हुन अपन ने मोलैलिटी फाइंड आउट करनी। I hope this is easy बच्चे। ठीक है, इजी है ना? सो अपन ने मोलैलिटी फाइंड आउट कर ली यूजिंग द फार्मूला। हुन देखो कितना फर्क पै गया, ਇੱਥੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 1.2 ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੋਂ ਸੋਲਿਊਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੈ that is 1.12। क्लियर? ठीक है। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट मोलैलिटी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चे, इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋल्व ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ठीक है ना? जबकि the actual solution is जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बोर्ड पे करवाता। ठीक है, डन। So बच्चे in the next question we'll study कि how to convert percentage into molality। ठीक है, how to convert mass percentage into molality। So the question comes, so बच्चे our question is you are given a 10% NaOH solution by mass। So बच्चे अपन को 10% NaOH given है by mass। Calculate its molality। सो इसकी मोलैलिटी अपन ने कैलकुलेट करनी है। सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चे के। ठीक है ना? सो परसेंटेज आ गई, सो टोटल सॉल्यूशन कितना एज्यूम करना है अपन ने 100 ग्राम्स। सो लेट मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। सो बच्चे सॉल्यूट का मास कितना हो गया 10 ग्राम्स। क्लियर? सॉल्वेंट का मास कितना बच गया टोटल -10। सो 100 - 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम्स। सो सारा डाटा आ गया। मोलैलिटी बहुत इजीली कैलकुलेट होएगी। सो योर मोलैलिटी नाउ विल बी WB by MB into 1000 by WA। ठीक है। सो अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं। WB कितनी कैलकुलेट कीता अपन ने बच्चे 10 ग्राम्स। क्लियर? मोलर मास NaOH ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 40 into 1000 upon WA बच्चे कितना है 90 ग्राम्स। सो हो जाएगा आंसर, इट विल बी इजीली कैलकुलेटेड। ठीक है ना? सो अपन दोनों जीरोस कट दिया। सो इट विल बी 10 into 10 100 upon 9 4s are 36। क्लियर? ठीक है, डन बच्चे। अब 4 ਨਾਲ डिवाइड करते हैं। दिस इज 25 एंड दिस विल बी 9। तो एक बार कैलकुलेशंस खुद भी क्रॉस चेक कर लियो। सो 25 by 9, सो 9 2s are 18। ठीक है। सो 7 and 0, ठीक है, 70 बच गया। सो 9 7s are 63। ठीक है, अगेन 7 zeros, so 2.77 is your molality। डन हो गया। So if you are given a 10% NaOH solution, so percentage तो अपने पास solute का mass, solvent का mass आ गया, and this is what we need for our calculations। Easily बच्चे। ठीक है,
नाउ वी शैल मूव ऑन टू एन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, दैट इज मोलैलिटी इंटू मोल फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन इंटू मोलैलिटी। सो देखो बच्चे, सो ध्यान नाल देखो, ईजीएस्ट ऑफ द कन्वर्जन्स है बट देखने में काफी कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को। सो देखो लगे, सो योर क्वेश्चन इज, हम देखो बच्चे एक कन्वर्जन्स दे टाइम ते ही आपां नू डेफिनेशंस का मान गया। देखो मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट। देखो, सो अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH in water is 2 molar. So the molality कितनी है? 2. Calculate the mole fraction of NaOH या फिर water, है ना, किसी ने भी पूछी जा सकती है अपन। सो देखो बच्चे, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਸਿਰਫ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ NaOH ਦੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ NaOH ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਤਾਂ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਜਨਸ ਆਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, the mole fraction of NaOH, the formula is number of moles of NaOH upon total number of moles. So this is the formula na। hun dekho bache 2 molar, so we are given molality is 2। hun bache dhyan naal, matlab this is the important part, molality is 2। इस तो मैं की रिजल्ट निकाल सकता है। सो डेफिनेशन में जाओ, मोलैलिटी की होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखो ना, डेफिनेशन की होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट की अगर 1 केजी दे विच जिन्ने भी सोल्यूट दे मोल्स है दैट इज मोलैलिटी। यानी कि हुन 1 केजी दे विच कितने सोल्यूट दे मोल्स है? 2। क्लियर? सो दिस इंप्लाइज इफ WA मैं एज्यूम कर ला 1 kg यानी कि 1000 grams, the number of moles of solute कितने आ गए बच्चे? 2। सो देखो NB मैं फाइंड आउट कर चुका, सो 2 अपॉन डन। सो एक टर्म में फाइंड आउट कर ली ना, मेरी गल समझ आई कि नहीं? अपनी मोलैलिटी की डेफिनेशन की होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सो मैं सॉल्वेंट एज्यूम कर लिया 1 kg, तो नेचुरल सोल्यूट दे मोल्स कितने होंगे? 2। नाउ मैंने Na चाहिए, Na की है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास मेरे पास है, ठीक है। सो Na इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास कितना है? 1000, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18, डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 55.55। सो आ गया बच्चे। सो इथे मैं पुट करूंगा 55.55, सो 2 अपॉन 57.55। सो इसको सॉल्व करके जितना भी आ गया दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। वाटर दी फाइंड आउट करने थोड़े को 2 तरीके है, NaOH नु 1 चो माइनस कर दो या फिर ऊपर की कर दो 55, नीचे कर दो 57.55, you will get the mole fraction of water। Done। So बच्चे समझ आया? This is how to calculate mole fraction from molality। ठीक है, अपन ने molality नु डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एज्यूम कर लिया। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 kg सॉल्वेंट जिन्ने भी सोल्यूट दे मोल्स है दैट इज मोलैलिटी। ठीक है, सो मैं सॉल्वेंट एज्यूम कर लिया 1 kg, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋल्यूट ਦੇ ਮੋਲਸ ਪਾਤੇ 2, ਤਾਂ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ਬੱਚੇ। डन। नाउ कम ऑन टू इज द एग्जैक्टली इनवर्स कि अगर मोल फ्रैक्शन गिवन है सॉल्यूट या सॉल्वेंट दी तो आप मोलैलिटी कितना फाइंड आउट करनी है बच्चे। सो देखो
सो देखो राजे, नाउ योर क्वेश्चन इज calculate the molality of a solution of sulfuric acid in water if the mole fraction of H2SO4 is 0.2। बच्चे ये सिंपल गल है, अगर सॉल्यूट दी 0.2 ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ 0.8। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ 1, ਸੋ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 0.8। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਟੋਟਲ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ 1 ਨਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋल्यूट ਦੀ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ, ਅਗਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸੋल्यूट ਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ आवर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सो जिद्दां ਆਪਾਂ परसेंटेज वाले अज्यूम करते ਹੁੰਨੇ ਆ 100, मोल फ्रैक्शन वाले टोटल अज्यूम करते ਹੁੰਨੇ ਆ 1। सो हाँ जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट की करनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी ਦਾ फार्मूला ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ही लिख लिया, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन WA, या ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं मोलैलिटी इज इक्वल टू WB upon MB into 1000 upon WA। फाइन। नाउ हम देखो बच्चे कितना इजी है क्वेश्चन। लेट टोटल मोल्स इज इक्वल टू 1, है ना। अपन मोल फ्रैक्शन गिवन है तो अपन टोटल फ्रैक्शन कितनी एज्यूम करेंगे 1, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए 0.2। क्लियर? जितनी उसकी मोल फ्रैक्शन गिवन है वो 0.2। सो देखो NB मेरे को आ गया 1000 ता कांस्टेंट है, सिर्फ एक टर्म रहेगी WA, वो भी इजीली आ जाएगी। देखो कितने, अगर NB 0.2 ता NA कितना हो गया अब फाइंड आउट कीता सी 0.8। अगर NA आ गया तो WA भी आएगा। किਵੇਂ आएगा? Na is equal to, so WA किਵੇਂ आएगा Na into मोलर मास। पता ना अपन को फार्मूला क्या ਹੁੰਦਾ है, नंबर ऑफ मोल्स is equal to W by M, ठीक है। so W is equal to N into M, so N into M, हाँ जी। so कितने मोल्स है अपने को 0.8, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18, सो मल्टीप्लाई करके आ गया 14.4 ग्राम्स। डन, ठीक है। सो WA भी आ गया बच्चे। सो मैं वैल्यूज पुट करूंगा 2 into 1000 upon 14.4, so I get 2000 upon 14.4 and इसको सॉल्व करके जो भी आ गया that is my answer। इजी बच्चे, ठीक है। So this is how to calculate molality into mole fraction and mole fraction into molality। Fine बच्चे। So ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ठीक है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ concentration term basically cover ਕੀਤੀ ਹੈ molality, ठीक है। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ mole fraction and molality cover ਕਰ ਲਏ ਸੀ। Tomorrow we shall be covering a very important and the toughest part इस chapter ਦਾ, ठीक है, that is normality, ठीक है। toughest नहीं कह सकते, the only thing is कि उसਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ठीक है ना। और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ normality ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ percentage into molality ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਜਨ। दूसरा ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ molality into mole fraction and third mole fraction into molality। कल आप करांगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी या मोलैलिटी तो मोलैलिटी, ठीक है ना। सो हाउ टू इंटर कन्वर्ट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है ना, वो आप कल स्टार्ट करांगे। वो करन तो बाद we'll move on to our last concentration term that is normality बच्चे, ठीक है ना। नॉर्मैलिटी तो बाद अपने को एक छोटी जी concentration term हो रहा है formality, it will take hardly 5 to 10 minutes, ठीक है ना।
ਤਾਂ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਮੋਲੈਲਿਟੀ, ਦੂਸਰਾ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਟਰਕਨਵਰਜਨਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਬਲਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਵਰਡ। ਆਪਾਂ मोल फ्रैक्शन कवर कर चुके हैं, मोलैरिटी कवर कर चुके हैं, मोलैलिटी कवर कर चुके हैं, ठीक है। ओनली नॉर्मैलिटी इज रिमेनिंग। सो बच्चे जिन्ने भी क्वेश्चंस मैं तुहानू अज करवाए हैं, ठीक है, उन्होंने कर लो, ठीक है। जिहड़ा एज अ होमवर्क दिता है उसनू कंप्लीट कर लो, ठीक है। एंड बच्चे वन थिंग मोर, होमवर्क नू कॉपी करके ना कराया करो, ठीक है ना। सो उस दिन मैं देख रहा कि लाइक जो एक मिस्टेक पहले स्टूडेंट ने, आई थिंक जसप्रीत दी नोटबुक सी वो है ना, जो क्वेश्चन उसने गलती की हुई है, एक सिली मिस्टेक, वो सारे ने रिपीट की हुई है। इट मीन सारे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। देयर इज नो हार्म इन टेकिंग अ हिंट फ्रॉम अदर्स। अगर कोई क्वेश्चन आपां नूं नहीं समझ आ रहा तो आपां हिंट ले लो, बट उसनूं एज इट इज कॉपी पेस्ट करना दैट इज वेरी मच रॉन्ग, ठीक है ना। सिर्फ एक बच्चे का पूरी क्लास दे विच रवनीत का क्वेश्चन करैक्ट सी, ठीक है ना। चलो नो डाउट उसका करैक्ट सी, जसप्रीत का भी मैं करैक्ट ही मनूंगा बिकॉज द फॉर्मूला वाज करेक्ट एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू सबमिट द आंसर्स, तो इट मींस ही वाज यूजिंग द राइट टेक्निक। बट बाकी बच्चे एक्सेप्ट फॉर रवनीत एंड जसप्रीत, बाकी सब ने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रखा सी, ठीक है ना। एंड द लास्ट थिंग जिहड़ी मैं कहनी है कि देखो बच्चे, ट्राई टू कंप्लीट योर होमवर्क बाय 5 PM, है ना। 5 PM तो पहला अपना होमवर्क सबमिट करवाया करो। मैनू पता है ये मिसक्रिपेंसीज ये उदों ही आंदियां ने, ठीक है ना, जदों आपां कम लेट करते हैं, ठीक है ना। पहला आपां लैक्चर नूं सुनन दे विच, नोट करन दे विच, नोट्स बनाउण दे विच देरी करते हैं, एंड फिर जो अपने कोल टाइम घट हुंदा है, जो पता लग जाता है कि हाँ जी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सबमिट करवाता जिन्हां ने करवाना सी, फिर आपां फटाफट अपना खत्म करन लई जस्ट उसनूं कॉपी पेस्ट कर दिंदे हैं किसी दी भी नोटबुक तो, ठीक है ना। तो वो चीज़ ना करो बच्चे, ठीक है ना। देखो इस चीज़ को रोकने लिए मैं बच्चों को यह भी कह सकता कि यू नीड टू सबमिट योर आंसर्स पर्सनली टू मी, नॉट इन द ग्रुप। बट मेरा ग्रुप च करवाने का मोटिव की होंदा है, ताकि अगर तुहाडा कोई क्वेश्चन अटक रहा है तो यू कैन टेक अ हिंट फ्रॉम योर फ्रेंड्स। मेरी गल समझ रहे हो ना, ठीक है ना। एंड मोर ओवर देखो जिन्हें चीटिंग करनी है वो तो फिर चीटिंग कर ही लेगा। द फ्रेंड्स कैन कॉन्टेक्ट ऑल्सो, है ना, दे कैन कॉन्टेक्ट ईच अदर। तो मैं पर्सनली सेंड करवा सकता है, बट ग्रुप सेंड करवाने का मोटिव मेरा यही होंदा है कि यू कैन टेक अ हिंट बट डोंट कॉपी पेस्ट इट, ठीक है ना। हम थोड़े जो कई बच्चे सॉरी बोल रहे हैं, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर वी वोंट रिपीट इट। देखो बच्चे, एक्शंस दे स्पीक बेटर देन वर्ड्स। बोलन नाल कुछ नहीं होना, अगे तो बस ये रिपीट ना करियो, दैट विल बी अ सॉरी एंड दैट विल बी अ सॉरी एक्सेप्टेड, ठीक है ना। सो चंगी तरह पढ़िया करो, नो नीड टू चीट, ठीक है ना। मतलब अपन चीट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो चीटिंग तुसी अपने पेरेंट्स या मेरे नाल नहीं कर रहे हो, तुसी खुद नाल चीट कर रहे हो बच्चे, ठीक है। चीटिंग तो तुसी तां करो ना कि अगर तुसी मेरे तो 5, अगर मैं सुनूं लेट इट बी 10 क्वेश्चंस एज होमवर्क दिते हैं तो तुसी उहदे विचों अगर 5 डाउट्स पूछ रहे हो तो मैं सुन के औखा हो रहा है कि 10 विचों तुसी 5 डाउट्स क्यों पूछ ले, है ना। आई आंसर ईच एंड एवरी ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है। जदों भी मैनूं टाइम मिलता है तुसी हैफर्जडली पूछ लैंदे हो, कदे भी मैं फिर भी आंसर कर दिंदा हुंदा व्हेनेवर आई गेट द टाइम, ठीक है। तो जो तुहाडे क्वेश्चंस, तुहाडीआं क्वेरीज आंसर हो रही ने, फिर आपां नूं चीटिंग करने की जरूरत है बच्चे, ठीक है। सो डोंट रिपीट इट एवर अगेन, ठीक है ना। सो ये सारा पोर्शन कंप्लीट कर लेना है, होमवर्क कर लेना है, एंड विद इन द नेक्स्ट 1 or 2 लेक्चर्स, मे बी 2 लेक्चर्स, आपां यही वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर देंगे, एंड देन वी विल बी ओनली लेफ्ट विद स्टोइकोमेट्री, ठीक है ना। एंड स्टोइकोमेट्री विल बी अनदर 2 more lectures. So what I want to say is कि within the next 4 lectures we'll be done with this chapter बच्चे, ठीक है ना। So keep studying, keep revising बच्चे. Thanks a lot.